Hello everyone, I hope you are good. In this class, we will discuss a very important method, Macaulay method. It is also related to the finding the slope and deflection of elastic beam. Okay. In the previous classes, we have discussed about the elastic curve of beam and elastic differential equation, that is moment equal to m equal to E I d is 2 y d upon d x square. After that we have discussed double integration method for different beams, cantilever beams and simply supported beams at a different loading conditions. We find out the some relations for deflection and slopes. Okay. In this lecture, in this unit 4, lecture number 3rd, in this lecture we have discussed the second method, Macaulay methods. Okay. We discussing about some methods, Macaulay method, double integration method and moment area methods. Okay. All methods are apply at different conditions, all methods have some benefits, some drawbacks. Okay. So, now we will discuss in this lecture Macaulay methods. First of all, let me introduce to myself. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BBD and IIT Lucknow. Okay. This is the introduction to solid mechanics, KC 402 सब्जेक्ट कोड है आपका, मॉड्यूल्स 4 चल रहा है आपका, लेक्चर नंबर 3 है इसमें. मैकॉलेस मेथड इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं. ओके. In the previous topic we have some important concepts such as the deflection and slope of the simply supported beam with point load, deflection and slope of simply supported beam carrying uniformly distributed load, deflection and slope of a cantilever beam with point loads and deflection and slope of the cantilever beam loaded with the uniformly distributed load in the previous class. Now, we will start here in this topic another important method, that is the Macaulay method, to determine the deflection and slope of loaded beam with the help of these methods. Okay. We have already seen terminology related to the slope and deflections of beam with the help of recent classes in previous classes. Now, we have discussed interesting method, Macaulay method and its significance with the help of this lecture. There are basically 3 important methods by which we can easily determine the deflection and slope at any section of loaded beam. Double integration method that completed in the previous classes, moment area method it will discuss in the next classes, and Macaulay's methods. Okay. Double integration method and moment area method basically used to determine deflection and slope at any section of a loaded beam will be loaded with a single load, while Macaulay method is basically used to determine the deflection and slope at any section loaded beam when beam will loaded with a multiple loads. Okay. तो इसके कई इम्पोर्टेंस हैं Macaulay methods के. सबसे पहले मैं बताना आपको चाहूँगा, let us consider one case of simply supported beam with a multiple loaded and the let us write here the complete step one by one in order to understand the complete procedure of Macaulay method. Let us consider a beam AB of length L is simply supported at A and B is displaced in the following figure. This is the beam AB, it is supported at A and B. Consider that there are the 3 loaded W1, W2 and W3 are acting on the beam AB at a point C, D, E respectively, and we have displaced these load in the following figures. We can say W1 is x1 distance from a left hand side point A, and the second load is x2 distance, third one is the x3 distance from a support point A.
आर ए इज द रिएक्शन आर ए एंड वी पे आर बी रिएक्शन फोर्स होंगे। ओके, यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर आप मैकाले मेथड का सबसे जो अच्छा इसका बेनिफिट्स है कि जिस भी सेक्शन के लिए आप कंसीडर करेंगे, कट करेंगे सेक्शन, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस हैं वो उसी सेक्शंस के लिए अप्लाई होंगे जो कि डबल इंटीग्रेशन में पूरी बीम के लिए एक साथ अप्लाई होते थे। ओके, जैसा कि यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम का पहला एग्जांपल हमने लिया है। वी हैव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, W1, W2, W3 लोड एक्टिंग ऑन द बीम AB, A1, A2, A3 द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सपोर्ट A, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है पूरा। AB द पोजीशन ऑफ बीम बिफोर लोडिंग, अगर कोई भी ये बीम है सिंपली सपोर्टेड, इसकी पोजीशन AB है। ओके, कब, जब कोई लोड नहीं है। AFB पोजीशन ऑफ बीम आफ्टर लोडिंग, मतलब जब W1, W2, W3 जब ये होगी तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो ये AFB पोजीशन आफ्टर द लोडिंग। थीटा A, इस पॉइंट पे थीटा A एंड थीटा B ये स्लोप हो गए, आपको पता है। ओके, एट V, YC, YD, YE इस पॉइंट पर हमारा YC ये D है तो YD एंड YE। ओके, ये हमारे लीनियर वर्टिकली डायरेक्शन में बिल्कुल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुए, तो तीनों ये क्या आ जाएंगे, डिफ्लेक्शन होंगे हमारे, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिए एट द C एंड D रिस्पेक्टिवली। बाउंड्री कंडीशन क्या, वी मस्ट बी अवेयर दैट द बाउंड्री कंडीशन अप्लीकेबल इन सच अ प्रॉब्लम वेयर बीम विल बी सिंपली सपोर्टेड एंड लोड विद द मल्टीपल पॉइंट्स लोड। डिफ्लेक्शन एट एंड्स पॉइंट सपोर्ट A एंड B सपोर्ट विल बी 0 while द स्लोप इज मैक्सिमम। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वी हैव डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रिएक्शन फोर्स, हियर इन दिस केस वी नीड टू सिक्योर द RA एंड RB। सबसे पहले जब भी कोई भी बीम दी जाएगी, चाहे आपकी सिंपली सपोर्टेड हो, एक कैंटिलीवर बीम हो, आपकी लोड अप्लाई हो रहे हों, तो हमको देखना है कि जो ये रिएक्शन है, अगर इस पर मूवमेंट आ जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा, तो ये सबसे पहले आपको कैलकुलेट करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बीम आपको दिए सिंपली सपोर्टेड, आप उन दोनों सपोर्ट के रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 मैकाले मेथड में। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, वी विल हैव टू एज्यूम वन सेक्शन XX एट डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। Here in this case we will assume one section XX extreme away from support A. Let us consider that section XX having x distance from support A. मतलब हम एक ऐसा सेक्शन कट करेंगे जहाँ दूसरे नंबर पे, ओके, देखिए इस बीम में आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, देखिए बीम दी गई है, आपने क्या किया, RA और RB फाइंड कर लिए स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम एक सेक्शन कट करेंगे, कहाँ से, पॉइंट A से, लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज x डिस्टेंस। उस सेक्शन में हम देखेंगे वो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे सेक्शन कट करना है, जहाँ पर सभी लोड जो हमारे W1, W2, W3 आ रहे हैं वो सारे लोड्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं। ओके, स्टेप 1 में जो भी सिंपली सपोर्टेड बीम या जो बीम दी होगी, जितने भी मल्टीपल लोड अप्लाई हो रहेंगे, बोथ एंड्स पे आप क्या करेंगे, रिएक्शन फाइंड करेंगे। ओके, कैसे फाइंड करने अभी बता रहेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद हमेशा जो सेक्शन कट करेंगे फ्रॉम लेफ्ट से एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हुआ जो इतने भी लोड हैं वो सब उधर ही आपके इंक्लूड हो जाएं उस सेक्शन के बिफोर में। ओके, ये सेकेंड स्टेप है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 वी विल हैव टू सिक्योर द मूवमेंट ऑल द फोर्सेज अबाउट द सेक्शन XX, वी कैन राइट द मूवमेंट इक्वेशन एज मेंशन। तीसरे नंबर पर हम मूवमेंट उस XX सेक्शन के लिए फाइंड करेंगे। ओके, इस डायग्राम में देखिए, अब अगर हम यहाँ मूवमेंट अगर फाइंड आउट करें तो क्या होगा, RA से पहले शुरू करेंगे, तो RA इंटू एक्स टोटल, ओके, माइनस W1, ओके, W1 कितना होगा, x माइनस x1, फिर माइनस W2 x माइनस x2 माइनस W3 x माइनस x3। ओके, ये इस तरीके से मूवमेंट की इक्वेशन
तीसरे नंबर पे इक्वेशन में हमको फाइंड करनी, ये लिखी हुई है आपकी A1 A2 A3 लिखा, वही x1 x2 x3 जो हमने लिया है। तो सब तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, जो सेक्शन कट कर लिया है मैकाले मेथड ये कहता है कि फिर उस पर हमको क्या करना है, मोमेंट्स लेने हैं। ओके, मोमेंट्स हमको फाइंड कर लेना है। मैक्स वी हैव टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन प्रोवाइडेड द सुटेबल साइन द अबव bending moment about the section XX. For more detailed information about the sign convention used of bending moment. ओके, साइन कन्वेंशन आपको जरूर पता होने चाहिए, उसी के बेसिस पे आप इसको फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है और ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में और ये इस तरीके से क्लॉकवाइज है। जितना भी लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ है जो क्लॉकवाइज होगा हमेशा उसको पॉजिटिव लेंगे, एंड जो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज या डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा होगा वो सब निगेटिव हो जाएंगे। तो ये हमारा इस तरीके से होगा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड जिस सेक्शन पे हो उसके अगर देखेंगे तो अगर क्लॉकवाइज होगा तो वो निगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, इस साइड डायरेक्शन में जा रहा होगा तो इसीलिए पॉजिटिव लिया, और सारे लोड्स जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो निगेटिव लिए हैं। साइन कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़े हैं, जानते हैं आप अच्छे तरीके से। ओके, तो वो सारे साइन कन्वेंशन आप यूज कर सकते हो जो भी जिसके हिसाब से। आपको करना क्या, सिंपल सा आपको बस इतना करना है कि इस एक्स एक्सिस पे मूवमेंट निकालना है mx। ओके, और वो मूवमेंट हमें देखना है इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लोड रिएक्शन फोर्स हैं उनके कारण। तो मैकाले मेथड में फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि जो इक्वेशन वो बीम दी होगी उसके रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने हैं। सेकेंड स्टेप में हमको एक क्रॉस सेक्शन कट करना है जो कि लेफ्ट से अगर कट करेंगे तो एक्सट्रीम पे कट करना है आपको। ओके, थर्ड में उसके लॉन्ग मूवमेंट फाइंड कर लेना है। फोर्थ स्टेप में हम उस इक्वेशन को जो मूवमेंट फाइंड किया है अपनी इलास्टिक इक्वेशन के इक्वल में रख दें, EI इक्वल टू d2/dx के इक्वल में ये हमने रख दिया, ये इक्वेशन आ गई। ओके, तो ये जो इक्वेशन आई है सेम ऐसे जब हम डबल इंटीग्रेशन कर रहे थे वहाँ पर भी वहाँ सिंगल लोड था तो यही इक्वेशन इसी तरीके से लिखते थे। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, स्टेप 5 में मैकाले मेथड कहता है, ये कई लोड के लिए अप्लाई हो सकता है इसीलिए थोड़ा अच्छा मेथड कहा जाता है मैकाले मेथड। तो EI dy/2 ये हमने देखा है इक्वल टू m होता है। ओके, इलास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन EI d2/dx² इक्वल टू RAx माइनस W1x माइनस A1 W2x माइनस A2 माइनस W3x माइनस A3। डिस्टेंस की बात की जाती, मूवमेंट लेना। अब इसके बाद में स्टेप 5 में आप जाएंगे, वी विल नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। आफ्टर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वी विल हैव वैल्यू ऑफ स्लोप dy/dx। सिमिलरली आफ्टर सेकेंड इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ द y मिलेगी वो डिफ्लेक्शन की होगी। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पर इक्वेशंस लिखी गई, देखिए C1 लिखा गया, EI dy/dx RAx, और ये C1 लिखा गया। ये किसकी इक्वेशन हो गई, स्लोप की इक्वेशन हमको मिल गई। एंड अगेन इंटीग्रेट करोगे इसी इक्वेशन को तो C1x C2 डिफ्लेक्शन की इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि इसमें क्या होता है, जिस भी सेक्शन तक आप स्लोप या डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये उतनी ही डिस्टेंस के लिए होते हैं, ना कि डबल इंटीग्रेशन मेथड इतना पूरी बीम के लिए हो जाते हैं। कैसे बताते हैं, जैसे अगर यहाँ पर आपने कहा है कि जो बीम दी गई हमारी ये वाली, इस बीम में अगर देखिए इस बीम में अगर आपका मन है कि इस पॉइंट पर हमको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शन अगर इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो जो कांस्टेंट जितने भी आए वो सब बाउंड्री यहीं तो होने चाहिए, इधर के ही। ओके, इसके इस साइड के ही होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के ही। तो देखिए कैसे उस इक्वेशन में इस सर के ही कंसीडर होगा, इतने ही मटेरियल के जो भी कांस्टेंट होंगे वो यूज होंगे, आप समझ सकते। देखिए अगर हम इसमें वहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं तो A1 की वैल्यू रखोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं कंसीडर, ये सारे टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो उधर हमारा सिर्फ इतना टर्म ही बचेगा और प्लस C1 बचेगा। बात समझिए, ये वैल्यू हम नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको कंसीडर करते हैं। आइए इसको इंटीग्रेट किए, डिफ्रेंसिएशन किए, वो इंटीग्रेशन किए तो स्लोप और डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल गई हमको।
अब हमें मालूम है कि C1 और C2 दोनों कांस्टेंट हैं, इनकी बस वैल्यू आपको किसी भी तरीके से फाइंड करनी है। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दें, हमको मालूम है एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या होगा कि डिफ्लेक्शन जो x 0 रखोगे तो 0 होगा, और वहाँ पर स्लो डिफ्लेक्शन x की वैल्यू अगर l रख दोगे तब भी हमारा 0, क्योंकि ये सपोर्ट पॉइंट हो गए सिंपली सपोर्टेड बीम में। ओके, ये अगर हम अप्लाई करेंगे स्टेप 6 में बाउंड्री कंडीशन लिखेंगे, स्टेप 7 में हम C1 C2 दोनों कांस्टेंट को फाइंड कर लेंगे। ओके, और स्टेप 8 में हम क्या करेंगे, कंसीडर पॉइंट वी इजीली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। बात समझ गए? मैकाले मेथड्स में ये 8 स्टेप आपको फाइंड करनी है और पूरा बिल्कुल सही से क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ओके, और इससे सॉल्व हो जाएगा। तो मैकाले मेथड में मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी बीम दी है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैकाले मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है अदर पे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोडिंग पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन और कुछ मेथड्स हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। तो जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड था, उनको मैं उस तरीके से नहीं यूज कर रहा था, तो इसीलिए मैकाले ने मेथड दिया। और इसमें मैंने अभी पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको 8 स्टेप बताएंगे। सिंपल हैं, कम ही स्टेप हो सकती हैं आपको। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी बीम जो दी है, रिएक्शन फोर्स फाइंड कर लेना। रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करने के बाद में आपको क्रॉस सेक्शन कट करना है लेफ्ट से इसी बीम में, और सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे सभी लोड जितने भी अप्लाई हो रहे हैं वो सभी लोड उस क्रॉस सेक्शन के इनसाइड में आ जाने चाहिए। ओके, नंबर 2 पर। नंबर 3 पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मूवमेंट उस क्रॉस सेक्शन जो कट किया है अगर एक्स तो इस पे फाइंड आउट करने हैं सभी जितने भी लोड और सपोर्ट के कारण यहाँ पे मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा। मूवमेंट फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद की स्टेप में जो आपकी इलास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन है बेंडिंग के लिए बीम में, जो आपको ड्राइव की गई है, डेरिवेशन किया है, m = EI d2/dx², उस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा। आफ्टर दैट हमको इंटीग्रेशन करने, 2 इंटीग्रेशन करने हैं सिंपल से, और उन इंटीग्रेशन से इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन आपको जब मिल जाएगी उसके बाद में आप ये 2 इक्वेशन जो उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में स्लोप मिलेगा एंड सेकेंड में आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ओके, अब ये स्लोप और डिफ्लेक्शन मिल गया, स्टेप 6 में आप बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन के बाद में C1 C2 फाइंड आउट कर लेंगे, पुट कर देंगे तो उसमें आ जाएंगे। स्टेप 8 में स्लोप और डिफ्लेक्शन किसी भी पॉइंट पर बीम में आप फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल से देखेंगे कि कैसे मैकाले मेथड्स जो हमने यूज किया है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका। अ हॉरिजेंटल गिर्डर ऑफ स्टील हैविंग यूनिफॉर्म सेक्शन इज 14 मीटर लॉन्ग and is simply supported at its ends. It carries concentrated load of 120 kilonewton and 80 kilonewton at 2 points 3 meter and 4.5 meter from the two ends respectively. कोई एक गिर्डर दिया गया है, लाइक अ बीम आप समझ लीजिए, हॉरिजेंटल रखा गया है जिसकी टोटल लेंथ आपकी 14 मीटर दी गई है, और वो कह रहे हैं कि 120 किलो न्यूटन और 80 किलो न्यूटन जो लोड्स हैं वो किसी एक लेफ्ट हैंड साइड से आप ले लीजिए 3 मीटर पर हैं और दूसरा 4.5 मीटर पर है। ओके, तो ये आपके 3 मीटर और 4.5 मीटर पर दिए गए हैं। फॉर द सेक्शन ऑफ गिर्डर आई, ये आई लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी जो दी गई है वो 116 × 10⁸ mm4। ये जो डायग्राम बनाया यहाँ पे 6.5 लिखा है, तो इसको 4.5 की जगह आप 6.5 लिख सकते हो, उसी से सॉल्व करना। आपका ई की वैल्यू दी गई है 210 kN/mm। कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द गिर्डर एट अ पॉइंट अंडर द 2 लोड्स एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यूजिंग द मैकाले मेथड्स। तो इस तरीके का आपका न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें बताया जाएगा कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन ऑफ द गिर्डर एट पॉइंट्स अंडर द 2 लोड्स एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यूजिंग मैकालेस मेथड, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। ओके, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है,
जो भी बीम दी जाएगी उसके रिएक्शन फोर्स फाइंड करने। तो हमने सबसे पहले एक बीम बना दी, यहाँ पर ये बीम है, ग्रेडर बीम ए बी पर सपोर्ट है। ये पहला लोड आपका दिया गया 120, ये टोटल 14 मीटर की बीम है। ये 3 मीटर पे है, ये 6.5 मीटर पर है। ओके, कहाँ से, 2 एंड्स रिस्पेक्टिवली यहाँ से, ठीक। ये दे दिया गया पूरा 80 किलो न्यूटन, 120 किलो न्यूटन। तो अब हमको क्या करना है, ये वी ए, इसको वी ए से डिनोट कर सकते हो, एंड वी वी क्या है, वर्टिकल जो रिएक्शन फोर्स हैं ए और बी के, उनको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, उसमें हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से अप्लाई कर दें। वी ए प्लस वी वी कितना हो जाएगा, 120 प्लस 80। ओके, उसके बाद में मूवमेंट इक्वल टू 0। आप मूवमेंट अगर लगाना है किसी भी एक सेक्शन पे कट कर लीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, वी ए इंटू, आप इसी पे जाइए, बी पॉइंट पे अप्लाई कीजिए, तो वी ए इंटू 14 माइनस 120 इंटू 3 माइनस कर दीजिए 14 से 11 माइनस 80 इंटू 6.5 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 7.5। यहाँ से बी ए कैलकुलेट आपका हो जाएगा। अब बी ए और वी वी जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन पूरा किया गया है, तो यहाँ पर आपका पूरा लिखा हुआ है। तो बी ए और वी वी दोनों की, बी ए की वैल्यू आई 120 किलो न्यूटन, वी वी की वैल्यू आई है 80 किलो न्यूटन। ओके, तो ये दोनों हमने बता दिया आपको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो समेशन ऑफ फोर्सेस और मोमेंट इक्वल टू 0 से सॉल्व करके सबसे पहली स्टेप में मैकाले ये कहते हैं कि आप रिएक्शन फाइंड कर लो। आफ्टर दैट क्या करना है कि उसी बीम पर एक आपको सेक्शन कट करना है, कहाँ पे, ए से एक्सट्रीम पॉइंट पर, जो कि एक्स डिस्टेंस हम इसको ले लेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब हो गया कि सारे लोड जितने अप्लाई हो रहे हैं वो उस सेक्शन के अंदर ही रहने चाहिए, पॉइंट ए और उस सेक्शन के बीच में सभी लोड्स आ जाने चाहिए। ओके, जब ये आ जाएंगे तो इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, एम एक्स फाइंड करना है, अगर एक्स एक्स सेक्शन है तो। अब इस पे हमें मालूम है कैसे आएगा, एम एक्स की इक्वेशन लिखो, अगर कितना मूवमेंट आ जाएगा एक्स पे, तो देखिए वी ए इंटू एक्स माइनस 120 एक्स माइनस ई वाली डिस्टेंस कम हो जाएगी 3 माइनस 80 एक्स माइनस 6 और 3 9.5। ओके, तो ये आ गए। अब इस मूवमेंट एम एक्स की जगह पर हम लिख सकते हैं ई आई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वेशन। ओके, जब ये इक्वेशन हमें मैकाले में बताया गया है कि आपको ये पुट करना है मैकाले में, अगली में, इसके बाद में क्या करना है, हमको 2 बार इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए एक बार इंटीग्रेशन किया हमने, ठीक। इंटीग्रेशन करते समय आपको ध्यान रखना एक चीज़, क्या ध्यान रखनी, यहाँ पर जैसे कि आपको मूवमेंट में लिखा है कि 120 एक्स माइनस 3। ओके, तो अब आप इसको इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते हो कि 120 एक्स माइनस 360। ओके, अब इसको आप कीजिए 120 एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस 360 एक्स, इस तरीके से नहीं करना है, ये गलत है। मैकाले मेथड में हमेशा देखिए इस तरीके से ये सब उसमें बन रखते हैं ब्रैकेट में। आपको कैसे करना है कि अगर 120 बाहर लिखा है और x माइनस 3 लिखा है, तो इसको होल के साथ पूरा इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से, और 120 बाहर रहेगा, मतलब ये एक कंप्लीट मानना है। ये ध्यान रखना है आपको, मैकाले मेथड में इंटीग्रेशन करना है और सब हो जाएगा सिंपल सा। तो जब हमने इसको इंटीग्रेशन किया 2 बार, देखिए इंटीग्रेशन किया तो आपको पहली इक्वेशन मिल गई है आपकी स्लोप की और दूसरी डिफ्लेक्शन की। बाउंड्री कंडीशन हम लगा देंगे, सिंपली सपोर्टेड में आपको क्या होता है कि सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन 0 होता है, सेंटर पे सपोर्ट दोनों एंड पर। ओके, तो वो हमने यहाँ पर देखा x इक्वल टू 0, तब आ गया y की वैल्यू 0, तो C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। x इक्वल टू 14 रखोगे, y इक्वल टू 0 रखोगे, तो C1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 1931.78। अब अगर हम ये C1 C2 की वैल्यू दोनों पुट कर दें, हमें स्लोप पूछा नहीं गया, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन में ही पुट कर देंगे तो हमको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू डिफ्लेक्शन की आ जाएगी, इसकी कैलकुलेशन कर लो। अब मैक्सिमम कह रहे हैं, तो टू फाइंड द डिफ्लेक्शन एट सी पुट x इक्वल टू 3 इन द डिफ्लेक्शन इक्वेशन। यहाँ जहाँ x है वहाँ पे वहाँ 3 रख दीजिए, तो यहाँ से जो y c की वैल्यू आ जाएगी ये आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतनी आ जाएगी।
फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट डी, उस पर अगर फाइंड करोगे तो वहाँ पे आप डी 9.5 रख दोगे तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, सी और डी के बीच में कहीं पे होगा, तो फिर उसमें क्या करना, ई आई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 की इक्वल रख देना है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन डी वाई डी एक्स 0 मैक्सिमम के लिए आपको पता है मैथमेटिक्स से, तो वहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ओके, तो जब मैक्सिमम x की वैल्यू आ गई तो इस वाले इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की तो ये मैक्सिमम आ जाएगी। तो इस तरीके से मैकाले मेथड से आपको मैकाले मेथड समझना है और इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ओके, आई होप कि आपके ये समझ में आए होंगे, मैकाले मेथड समझ में आ गया होगा, इसके कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। ओके क्लास।